10th we'll start with the extraction of aluminium, and if you remember that we have already discussed different stages or the steps that comes in your metallurgy's process. So let's focus on it, and first of all we'll see about the ores of aluminium. We have already discussed, but still I am writing the bauxite, right? We have cryolite and corundum. So these were the three your ores, and you know that bauxite was your main ore or the chief ore. This we have discussed. We have also discussed about the names, chemical names, their formulas, what are they. So let's focus on the step part. So the first step that we'll focus over here. The step 1 is dressing of ore or concentration of ore. Now I think these steps are clear to you all, that how we focus on it. But in this we have seen different types of methods for dressing of ore or the concentration of ore or the removing the impurity from the ore. So once we have to see this, so we are using this ore. This is the chief ore, right? Chief ore of aluminium, or the main ore of you can also know call it as main ore of aluminium. ठीक है, bauxite है, hydrated aluminium oxide. If you see the formula, Al2O3 and twice of water, so that's why it is called as hydrated aluminium oxide, right? So we have to focus on this this point, the dressing of ore or the concentration of ore. So in aluminium metallurgy, it's very important we always follow the chemical method, the last method. So but in this case the name is also given to us, and that is your Behr's process. It's a very important process. It's a VIP, right? It's very important over here. And Behr's process, the name has been given on name of a scientist, Behr's. So this is the process which we have to follow. Basically it is a chemical method, and I have already mentioned you that the chemical which we use is a base, a concentrated solution of a base. ये chemical method है, ठीक है? But whenever the question comes that name the process for the concentration of ore, then you will write down Behr's process. You will not write down chemical method, because they will not give you marks. It is a chemical method, but it is based on a name of a scientist, so that's why you have to write this name, Behr's process, right? So in this you have to focus on this, what you have to require, what chemical you have to use. So chemical is your caustic alkali, and in this we use सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दैट इज़ NaOH. सो आप जो केमिकल यूज़ करते हो वो NaOH है, बट इसका ध्यान रखना है वो कैसा सोल्यूशन होना चाहिए. इट शुड बी अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaOH. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है. तो जब आपसे केमिकल पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो दिस इज़ बीन देयर, ठीक है. ये प्रोसेस जो होती है, ये भी जो पूरा बेयर्स की जो प्रोसेस है, इट्स टेक्स प्लेस इन स्टेप्स. So there are basically 3 steps takes place when we are using this concentrated sodium hydroxide. So I am writing down the names of I am writing the details of the steps or names of the step, then we'll focus on it. Now you can see the Behr process divided into 3 steps. First is the conversion of impure bauxite to sodium aluminate. Second is conversion of sodium aluminate, which has been obtained in the first step. It's converted to aluminium hydroxide. Then you are converting aluminium hydroxide to pure aluminium. So we'll see these steps one by one. So let's focus on the first point, जो हमारा पहला point है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, impure bauxite को convert कर रहे हैं. वी आर कन्वर्टिंग इट टू अ सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है. तो हमें ये देखना है कि हम ये कैसे करेंगे और क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, दैट वी हैव टू फोकस. सो लेट्स फोकस ऑन इट. तो आपको एल्यूमिनियम बॉक्साइड तो मालूम ही है कि हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है. अब हमें ये भी तो मालूम था कि हमने कौन सा केमिकल यूज़ करा. वी यू टुक NaOH, बट इट शुड बी अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है. ये हमने लिया जो कि बेसिकली आपका बेस था, ठीक है. अब हमने रिएक्शन कराया, यहाँ सोडियम एल्यूमिनेट हमें मिला, तो फॉर्मूला इज़ NaAlO2, बट वाटर इज़ ऑल्सो देयर, so you will write down water also. Now start balancing it.
हाउ मैनी एल्यूमिनियम आर देयर, 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, इधर 2 है, तो पुट 2 ओवर हियर, ठीक है। तो ये सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट आपका बन जाएगा, इसको बैलेंस करना है आपको। सो ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो नाउ चेंज्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट यू विल पुट अगेन, यहाँ पे है 2 लगा हुआ है तो पुट 2 ओवर है, क्योंकि सोडियम को भी यू हैव टू बैलेंस। अब वाटर को बैलेंस कर दीजिए, देख लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 6 है, तो यू हैव टू पुट इट 3 ओवर है। तो वाटर हो गया, ये सोडियम एल्यूमिनेट जो सॉल्ट मिला। नाउ द पॉइंट अराइजेस अबाउट यू हैव टू फोकस ऑन दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू आर यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाई दिस प्रोसेस इज बीइंग देयर और व्हाट इज़ हैपनिंग। एक्चुअली जो ये फर्स्ट स्टेप होती है, इसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि जो आपने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन लिया है, ये रिएक्शन बॉक्साइट के साथ जब करता है, इट टेक्स प्लेस अंडर प्रेशर फॉर अबाउट 2 आवर्स। तो आपको ये रिएक्शन जब आप स्टार्ट कराते हो तो इट टेक्स 2 आवर्स फॉर द प्रोसेस टू टेक्स प्लेस, है ना। तब धीरे धीरे स्टेप जो आगे बढ़ता है, तब आपको प्योर एल्यूमिनियम मिलता है। मतलब ये आप जो 3 स्टेप आप देख रहे हो, ये पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज़ दैट अबाउट द इम्प्योरिटीज़, ठीक है। इस बॉक्साइड में इम्प्योरिटीज़ है। अब ये जो इम्प्योरिटीज़ है, उनका कंडीशन क्या है, आपने दूसरा मेथड क्यों नहीं यूज़ करा, वाई यू आर नॉट यूजिंग एल्यूमिनियम है, मैग्नेटिक सेपरेशन ले लेते या कुछ और ले लेते। तो ऐसा इसमें क्या है जो प्रॉब्लम दे रहा है। अब पॉइंट आता है, जो इम्प्योरिटीज़ इसमें मौजूद होती है, दे आर नॉट एम्फोटेरिक इन नेचर्स ना, इम्प्योरिटीज़ आर नॉट एम्फोटेरिक, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है, तुम समझ रहे हो ना। एम्फोटेरिक वो होती हैं जो कि आपकी रिएक्ट कर जाए ना एसिड और बेस से। एम्फोटेरिक तो यही पढ़ा है ना हमने, वो होते हैं जो कि जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं तो वो रिएक्ट कर जाएं एसिड और बेस से। यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़, ये बॉक्साइड जो तुम लेके आओगे, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ मौजूद है, दे आर नॉट एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो अब वो इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वो जो इम्प्योरिटीज़ इस बॉक्साइड में जो इम्प्योरिटीज़ आपकी होती हैं, वो बेसिकली आपकी होती हैं, ठीक है। ये दोनों इम्प्योरिटी हैं, सिलिका ऑक्साइड है और आयरन 3 ऑक्साइड। तो अब ये जो आपकी दोनों इम्प्योरिटीज़ हैं, इनका नेचर क्या है, ये दोनों नॉन एम्फोटेरिक हैं, ठीक है। और ये कह सकते हो दे आर नॉट एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों जो इम्प्योरिटीज़ है, ना ही एसिड से रिएक्ट करेंगे ना बेस। अब एसिड तो इस्तेमाल करा नहीं है आपने बेस ने, तो ये NaOH से रिएक्ट नहीं करेंगी, ये उससे अनइफेक्टेड रहेंगी। तो क्या हो जाएगा, ये सेपरेट आउट हो जाएंगी, नीचे रह जाएंगी। और ये जबकि लेकिन जो बॉक्साइड है, ये कैसा है, ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। इट इज़ व्हाट, एम्फोटेरिक इन नेचर। मेरी बात समझ में आ रही, ये एम्फोटेरिक है। और जो इम्प्योरिटीज़ थी वो कौन है, नॉट एट ऑल एम्फोटेरिक इन नेचर। और आप कह सकते हो ये बेस से रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बॉक्साइड जो है वो बेस, देखो वही तो रिएक्ट कर रहा है, बेस ही बॉक्साइड ही तो बेस से रिएक्ट कर रहा है। तो बॉक्साइड ने बेस से रिएक्ट कर लिया क्योंकि वो एम्फोटेरिक इन नेचर था, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ थी वो एम्फोटेरिक नहीं थी, इसीलिए उसने बेस से रिएक्ट नहीं करा। इस पूरी रिएक्शन को जो फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट होगी, 2 घंटा तो आपको चाहिए अंडर प्रेशर, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो गई, जो बॉक्साइड जब वो एम्फोटेरिक, ही कैसा था, एम्फोटेरिक इन नेचर है, मैंने लिख दिया ऊपर, है ना। तो ये जो एम्फोटेरिक था, इसने बेस से रिएक्ट करा। तो आपको मालूम है कि कोई भी ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है बेस से, ये आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है, वो आपको सॉल्ट एंड वाटर देता है। वही उसने कर दिया, उसने आपको क्या दे दिया, सॉल्ट दे दिया यहाँ पे, और ये आपको क्या दे दिया, वाटर दे दिया। यही चीज़ तो हुई। तो ये ऑक्साइड जो था उसने बेस से रिएक्ट करा, सॉल्ट एंड वाटर उसने आपको दे दिया। ये कंडीशन हो जाती है, ये आपको ध्यान दे के बात करनी चाहिए कि कैसे आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ये तो फर्स्ट स्टेप है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द सेकंड स्टेप, जो हमारा सोडियम एल्यूमिनेट जो सॉल्ट हमें मिला है। अब हम इसको आगे देखते हैं क्या होगा। नाउ लेट्स फोकस ऑन इट। हमने ये देखा कि जो अब सेकेंड स्टेप क्या हुआ, सोडियम एल्यूमिनेट जो बनाया वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी जो आपने NaL2 बनाया सोडियम एल्यूमिनेट, उसको आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करोगे। तो ये एक सेकेंड प्रोसेस है जिस पे आपको ध्यान देना। अब ये इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो बेसिकली आप क्या करते हो, जो आपका सोडियम एल्यूमिनेट है उसमें आप उसको थोड़ा डाइल्यूटेड कर देते हो, ठीक है। ये ध्यान, अब डाइल्यूटेड करने के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, इसमें वाटर डालना पड़ेगा। पर ये रिएक्शन जो है, ये इसके लिए एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ अबाउट 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये चीज़ होती है। अब बेसिकली क्या होता है, जब ये दोनों, जब आप इसको पानी भी डालोगे, इतने में गर्म भी करोगे, तो वो आपको जिस बेस से बना होता है NaOH, वो आपको दे देता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे देता है, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यू गेट इट।
So this part is been there. Now the point is that there are few things which you have to remember in this कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है वो कैसा बनेगा. तो वो आपको क्रिस्टल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कि आप उसको बाद में प्रेसिपिटेट कर लेंगे, ठीक है. तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा, जो क्रिस्टल फॉर्म में. आप इसको बाद में प्रेसिपिटेट आउट, ये एरो लग गया है इसका मतलब पीपीटी बना है वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है. तो सिंपली गो फॉर फिल्ट्रेशन एंड प्रेसिपिटेटेड आउट. इस प्रोसेस को जब आप ये बनता है और आप इसको प्रेसिपिटेट करते हो तो ये पूरी प्रोसेस को आप कहते हो सीडिंग, राइट, आफ्टर प्रेसिपिटेटिंग आउट इन दिस थिंग, ठीक है. तो अब क्या कंडीशन हो गई है कि ये जो आपका जो ये चीज कंडीशन आप प्रेसिपिटेट आउट कर लोगे, क्रिस्टल फॉर्म में बना है, इसको आप ड्राई कर लो, फिल्टर कर लोगे, फिर ड्राई कर लोगे, तब आप ये इंसॉल्युबल है ही है भाई, नीचे बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये सोल्यूशन में तो रहेगा ही नहीं, इंसॉल्युबल है. तो ये बेसिकली आपका सेकेंड स्टेप हो जाता है. अब ऐसे ही हम अपने थर्ड स्टेप पे फोकस करेंगे कि हाउ द थर्ड स्टेप इज़ एकम्प्लिश. ये चीज़ क्लियर होगी सबको, करना कुछ नहीं है, बस ये जो सोडियम एल्यूमिनेट आपने लिया इसको डाइल्यूटेड कर दीजिए, 50 to 60 डिग्री तक इसको गर्म करिए. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ पीपीटी क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा, वो नीचे बैठ रहा होगा. NaOH है भाई, लिक्विड है. आप उसको फ़िल्टर कर लो. जब आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो ये पूरी प्रोसेस का डाइल्यूशन करके, ये पूरी जो पूरी कंडीशन है प्रोसेस पूरी यहाँ तक ही मानो, इस प्रोसेस को हम सीडलिंग बोलते हैं, ठीक है. और आपको इंसॉल्युबल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, इसको फ़िल्टर आउट कर लो, ड्राई कर लो, यूज़ करो. अब थर्ड जो स्टेप हमारा है वो यही है कि कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिनियम, ये जो हाइड्रोक्साइड हमें मिला है हम इसको प्योर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर देते हैं. नाउ लेट्स फोकस ऑन इट. तो कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टू प्योर एल्यूमिनियम, इससे गलत हो गया तो मैंने हटा दिया. नाउ लेट्स फोकस ऑन इट. सो वील सी टू इट हाउ इट्स हैपेंस. तो AlOH होल थ्राइस है आपका. आप इसको अब इस कंडीशन को देखो, करीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको हीट अप करना पड़ता है, जो ये Al2O3 देता है, साथ में आपको 3H2O जो कि वेपर्स के फॉर्म में आपको मिलते हैं. ये आपका प्योर एल्यूमिना है, दैट इज़ बीन ऑब्टेन्ड, ठीक है. सो वी हैव कवर अप विद दिस पार्ट. नाउ द सेकेंड स्टेप अराइजेस, स्टेप 2. फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. देखो कन्वर्जन ऑफ जो सेकंड स्टेप होता है वो आपको मालूम है कि आप है ना कॉन्सेंट्रेटेड ओर को आप चेंज करते हो टू इट्स ऑक्साइड, ठीक है. अब यहाँ पे एक सिनेरियो आ जाता है रिगार्डिंग योर ओर. ये ओर जो एल्यूमिनियम की मेटलर्जी ऑलरेडी, अगर इस ओर को देखो जो कन्वर्ट हो चुका है Al2O3, अब इसको वापस तुम ऑक्साइड में Al2O3 में तो कन्वर्ट नहीं करोगे ना, क्योंकि सेकंड स्टेप तो यही कहता है ना कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर को यू कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड. अब ये ओर इज़ दिस पर्टिकुलर ओर इज़ ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड. जो आपका प्योर एल्यूमिना बना है आपका, यू सी इट्स फॉर्मूला, इट्स Al2O3. सो व्हाट इज़ एन आइडिया टू कन्वर्ट इट बैक टू दिस थिंग, है ना, वापस उसमें. तो एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में सेकेंड स्टेप इज़ नॉट नेसेसरी. सो सेकेंड स्टेप इन मेटलर्जी of aluminium is not necessary. Why it is not necessary अगर पूछ लिया जाए आपसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ओर है वो ऑलरेडी, द ओर इज़ ऑलरेडी इन ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है. तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे ओर इज़ ऑलरेडी इन ऑक्साइड फॉर्म. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Now let's focus on the third step. Third step says the reduction of metallic oxide to its metal, ठीक है. अब यहाँ पे जो हमने पीछे मेटालिक ऑक्साइड बनाया था भाई, इसमें तो आपको रिक्वायर्ड है नहीं, तो जो आपको ऑलरेडी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप से ही आपको मेटालिक ऑक्साइड मिला हुआ था. सो दिस मेटालिक ऑक्साइड वॉज you will change into the metal, and you should understand the metal that is been there is not pure, ठीक है. रेयर ऑफ द रेयर केस होती है कि वो प्योर रहता है, इट इज़ इम्प्योर, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रहना है, जो मेटल आपको मिला है वो क्या है, इम्प्योर है, ठीक है. तो अब ये हमें इस स्टेप को भी देख के चलना है. आई एम शोइंग यू द डायग्राम फॉर द प्रोसेस, देन वील डिस्कस द थिंग्स लेटर ऑन दैट व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड. नाउ यू कैन सी द डायग्राम. This is the diagram which I am showing you, the electrolysis of the fused alumina.
In your books it will be different, and this is other book from which I am telling you. So this is the diagram which you can see, and you can see that the different things is being there. These are the anodes which are made up of graphite. This one is a gas carbon lining is been there, which acts as a cathode here. ठीक है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है तो एनोड कैथोड दोनों होगा. सो दिस गैस कार्बन लाइनिंग एक्ट्स एज द कैथोड, एंड दिस थिंग ग्रेफाइट्स यू हैव प्लेस दिस वर्क्स एज एन एनोड. ठीक है, ये एक आयरन का टैंक होता है. यहाँ पे एक ओपनिंग लगी होती है ऊपर से, ये नीचे की ओपनिंग है. यहाँ पे एक टैप होता है जिससे आप खोल के आप जो भी अपना मोल्टन एल्यूमिनियम होगा वो निकाल लेंगे. इसे एक कंटेनर बना लीजिए, तो एंड में जब ये प्रोसेस ख़त्म होएगी तो आप यहाँ पे मोल्टन एल्यूमिनियम निकाल लेंगे. ठीक है, दिस इज़ द केस. तो ये आपका पूरा कंटेनर है. अब आप इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप अलग अलग लेयर्स देख रहे हैं. ये अलग है, ये अलग अलग है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. ये बैटरी से कनेक्टेड होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होती है, ठीक है, वो थोड़ा उस पर ध्यान दे के चलना कि जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे अभी तक तुमने जितने भी पार्ट्स देखे हैं, यू हैव सीन द इलेक्ट्रोलाइट वॉज सिंगल, बट ओवर हियर द इलेक्ट्रोलाइट इज़ दिस. ये सब चीज़ें आपकी होती हैं इलेक्ट्रोलाइट में. आप इसमें 3 चीज़ें इसमें मौजूद हैं. एक आपका ये थोड़ा सा ये दिया रखा है, ये अलग अलग चीज़ें हैं. फ्यूज़ एल्यूमिनिया है, ठीक है. क्रायोलाइट होता है, ये प्लस लगा हुआ है लेकिन बेसिकली ये फ्यूज़ एल्यूमिनिया है. क्रायोलाइट है, और एक और चीज़ होती है इसमें, वो होता है फ्लोरोस्पार. फ्लोरोस्पार, ठीक है. तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इन 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है. अब इसको भी डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों है, ये क्यों ऐसी चीज़ें हैं, वो हम बाद में देखेंगे. आई विल टेल यू दीज थिंग्स. और ऊपर जो ये कंटेनर होता है, जो आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, इसके ऊपर जो ये तुम ये येलो येलो कलर की चीज़ें देख रहे हो बेटा, ये चीज़ें जो हैं ये कोर्क है. कोक जो होता है कार्बन का ही फॉर्म होता है ना, पहले भी देखा है, उसको हमने ऊपर से डाल दिया है. इन सब का इंपॉर्टेंस हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है. तो एक बार फिर से बता दे रही हूँ, ये आयरन टैंक है जो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. रेक्टेंगुलर स्टील टैंक होता है, और इसके अंदर एक कार्बन लाइनिंग लगी होती है जो कि गैस कार्बन लाइनिंग है, विच वर्क्स एट द कैथोड. वी हैव पुट एनोड्स ओवर हियर, and this is made up of graphite. So by seeing these things now you can judge that these are inert electrodes, they are not active electrodes. ठीक है ना, क्योंकि देखो ग्रेफाइट जैसे ही हम यूज़ करते हैं तो हम बात करते हैं कि ये सब चीज़ें जो है वो हम ज़्यादातर इनर्ट्स के में यूज़ करते हैं. ये हमने पहले भी सीखा हुआ है. ठीक है, जो ग्रेफाइट्स की आप एनोड्स यूज़ कर रहे हैं, ये जो बनी हुई है, ये काफ़ी मोटी दिख रही है ना आपको, थिक होती हैं, थिक कार्बन रॉड्स होती हैं ग्रेफाइट, दैट इज़ डिप्ड इन द दिस थिंग. इस तरह से देखो इसको रखा गया है कि नीचे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट आपने जो फ्यूज़ फॉर्म में लिया रखा है उसको टच कर रहा है. ये याद रखना, ऊपर तक मत बनाना. जब भी बनाओ तो ये नीचे जो इलेक्ट्रोलाइट है हमने लिया था ना, ये इलेक्ट्रोलाइट हमने लिए रखे हैं इसमें. आपने इसमें जो फ्यूज़ एल्यूमिनिया एक है, क्रायोलाइट अलग है, फ्लोरोस्पार है. ये 3 चीज़ें हैं जो विच इज़ वर्किंग एज एन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, इनका अपना रेशियो भी होता है. जैसे रेशियो होता है इसका, जैसे फ्यूज़ एल्यूमिनिया जो है वो आपका 1 पार्ट होता है, क्रायोलाइट आपका 3 पार्ट्स होता है, फ्लोरोस्पार आपका 1 पार्ट होता है. यानी 1:3:1 जैसे लिखा हुआ है वैसे ही 1:3:1 ये चीज़ हम लेते हैं. अभी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे क्यों लिया, क्या है, क्या रिएक्शंस है. टेम्परेचर करीबन 950 डिग्री सेंटीग्रेड हम यूज़ करते हैं. करंट इज़ 100 एम्पियर्स एट 6 to 7 volts. दिस मच इज़ बीन रिक्वायर्ड. नाउ लेट्स फोकस ऑन द थिंग्स दैट व्हाट आर द थिंग्स इज़ बीन रिक्वायर्ड. नाउ वील फोकस ऑन द थिंग्स कि क्या है क्या नहीं है. फर्स्ट वील स्टार्ट विद द फ्यूज्ड एल्यूमिनिया. ठीक है, जो हमने फ्यूज्ड Al2O3 हमने यूज़ करा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है. बेसिकली इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर, यहाँ पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है. क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है आपका वो काफ़ी स्टेबल ऑक्साइड होता है. ठीक है, और उसकी एक खासियत होती है, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन. सो इट्स वेरी गुड इनफ कि आप इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड लगाएंगे और ये जो फ्यूज़ एल्यूमिनियम होता है ये ईजिली रिड्यूस हो जाता है एल्यूमिनियम में, और आपको कोई रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत भी नहीं होती है. ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस समझिए फ्यूज्ड Al2O3 का. सेकेंड पॉइंट अराइजेस आता है कि आपने जो इसके साथ जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं एक्चुअल में. देखो वैसे तो अच्छा है कि भैया इसके हाईली स्टेबल ऑक्साइड है, यानी अगर आप हीट हाईली स्टेबल का मतलब हो कि अगर आपने हीट इसको अप्लाई करी तो ये तो मेल्ट ही नहीं होगा. ठीक है,
एक्चुअल में पता है क्या है, एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है ये Al2O3, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, करीबन 2500 होता है, इतना हाई टेम्परेचर होता है। अब तुम्हें लगता है कि स्टील कंटेनर करीबन 2050 डिग्री सेंटीग्रेड को स्टैंड कर जाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रॉब्लम यह हो जाती है कि हमें और चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनका भी इंपॉर्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो इसको मेल्ट करने के लिए अगर आपको इसको, भाई इसको मेल्ट करोगे तभी तो एल्यूमिनियम मिलेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट तुम देखो इसका कितना ज़्यादा है, 2050 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यू नीड हाई टेम्परेचर फॉर दैट। और उसके लिए हाई टेम्परेचर के लिए क्या है, तुम्हें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, हाई अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ बीन रिक्वायर्ड टू लिबरेट एल्यूमिनियम। यानी Al2O3 में से एल्यूमिनियम अगर चाहिए तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर भी सप्लाई करना है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करनी है। ठीक है, तो इसीलिए उसको मोल्टन स्टेट पे तब ला पाओगे तुम। ठीक, पहली चीज़। दूसरी कंडीशन हो जाती है रिगार्डिंग Al2O3 की, तो खासियत तुमने पढ़ ली कि कितना टेम्परेचर। अब ये कन्वर्ट तो होगा एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा ना, Al में कन्वर्ट होगा। अब पॉइंट हो जाता है Al का क्या मेल्टिंग पॉइंट है, Al2O3 का। ठीक है, इससे समझो, Al2O3 का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो अराउंड 2050 डिग्री सेंटीग्रेड था, और एल्यूमिनियम जो होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो करीबन 660 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है। अब ध्यान से सोचिए, इसको मेल्ट करने के लिए, इसको मेल्ट करना है आपको, मोल्टन स्टेट में लाना है, तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट की भी ज़रूरत है, तो आपको तब जाके ये मेल्ट होगा। अब आप सोचो, अगर ये जब मेल्ट होगा, चलो ठीक है, तो ये कन्वर्ट तो होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बनेगा, और एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 660 में, यानी वो तो आधा इवेपोरेट हो जाएगा, वोलेटाइज होगा और वो वेस्ट हो जाएगा, तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। आप यहाँ पे तो मेल्ट कर रहे हो इसको, हाँ एल्यूमिनियम भी आपको मिल रहा है, लेकिन टेम्परेचर तो उस कंटेनर का जो टेम्परेचर जिसमें रिएक्शन चल रही होगी वो तो करीबन 2000 से अबव है, और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम मिल रहा है उसकी खासियत क्या है कि वो 660 डिग्री पे ही मेल्ट हो जाता है, तो आपका वो तो इवेपोरेट होकर निकल जाएगा, वो वोलेटाइज हो जाएगा और बाहर निकल लेगा, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आपको यानी जो टेम्परेचर है उसको कम करना पड़ेगा। अब हम कैसे क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो। तो इसीलिए अब हम, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम दिखाया था, ठीक है, हम उस पर फिर जा रहे हैं वापस। ये जो डायग्राम है इस पर आप फोकस करिए, आपको क्रायोलाइट भी मौजूद है और आपके पास फ्लोरोस्पार भी है। अब इनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, अब ये क्यों ज़रूरत है, लेट्स सी फॉर इट। ठीक है, अब आपने ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं, इसको तो देख ही लिया, आपने स्टडी कर लिया। अब आप इनको समझिए कि क्रायोलाइट आपने या फ्लोरोस्पार क्यों डाला है ना। मेनली अगर आपको याद हो, इनका रेशियो 1:3:1 था। क्रायोलाइट हमने इन दोनों के कंपैरिजन ज़्यादा लिया, क्यों लिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअल में अभी तक जो मिक्सचर अकेले एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप हीट कर रहे थे तो आपको टेम्परेचर इतना चाहिए था 2050, लेकिन जब आप इन तीनों के को मिला के जब यूज़ करोगे मोल्टन स्टेट पे, तो अब ये जब मेल्ट होगा तो अब टेम्परेचर आपको कम लगेगा, 950 डिग्री सेंटीग्रेड लगेगा। ठीक है, ये हमने लिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इसका रेशियो हमेशा हमें ज़्यादा रखना है। क्यों? क्योंकि जो इन दोनों की खासियत होती है ना, ये जो क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट हेल्प करता है मोबिलिटी ऑफ द फ्यूज में। देखो तीन चीज़ें एक साथ मिली है, अगर उनकी मोबिलिटी नहीं होगी तो वो इधर उधर मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। तो इसीलिए जो क्रायोलाइट का जो अमाउंट होता है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो Al2O3 था वो हम स्टार्टिंग में देख के आए, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन में आता है ना, हमने पढ़ा था ना कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसीलिए उसका मूवमेंट होना ज़रूरी होता है। तो क्रायोलाइट आप डालते हो कि आपको कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर गेट्स इंक्रीज, सो दैट्स वाई वी ऐड क्रायोलाइट। वाई? बिकॉज जो प्योर एल्यूमिनियम था ये क्या है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। पहली कंडीशन समझ में आई क्रायोलाइट का इंपॉर्टेंस। दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है बात, फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार का क्या काम होता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड इट इज़ मेनली इट दे हेल्प इन द अगेन द मोबिलिटी ऑफ द फ्यूज मिक्सचर। ठीक है, बेसिकली दोनों का काम यही होता है, क्रायोलाइट और स्पोरो, इन दोनों का, कि वो भाई कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली भी चीज़ें दी रखी हैं। पहली चीज़ आ जाती है कि वो आपका इनहेंस द मोबिलिटी ऑफ द फ्यूज्ड मिक्सचर। मोबिलिटी में समझ रहे हो, वही मूवमेंट की बात है, वो फ्यूज जो मिक्सचर आपका ये बना हुआ है उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, फिर हम क्रायोलाइट पे चलते हैं वापस से कि क्रायोलाइट क्यों ज़्यादा लिया गया, क्यों करा गया, वही वाली बात है।
कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर को बढ़ाता है। दूसरी चीज़ जो होती है वो जो फ्यूजिंग पॉइंट होता है, मिक्सचर जो है ना, ये अभी मैंने तुम्हें बताया कि एक्चुअल में रिएक्शन के लिए आपको 2050 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए था, लेकिन अब जब आप ये दोनों चीज़ें भी इसमें डाल देते हैं तो टेम्परेचर जो है वो घट जाते हैं, और नाउ यू नीड अबाउट 950 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, तो इसीलिए ये बेटर होता है। ठीक है, ये इजी गोइंग कंडीशन है, क्योंकि पहले जब हम लोग ना इनका जब हम मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ते तो बहुत मुश्किल होती थी, तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग ने आया और डिफ़िकल्टीज़ को चेंज करा, सॉल्व करा, और है ना बहुत जो रिएक्शन जो पूरी मेटलर्जी थी उसको है ना इजी भी बनाया, सिंपलर भी बनाया और चीप भी बनाया। देखो सीधी बात है, जब तुम्हें इतने हाई टेम्परेचर में कोई चीज़ कम करनी होगी तो तुम्हें और ज़्यादा है ना अपने ऑपरेटर्स को भी उस लेवल के बनाने पड़ेंगे, तो और चीज़ एक्सपेंसिव होती जाएगी, तो इसीलिए ये सब चीज़ें मॉडिफाइड करी गई इन सब प्रोसेसेस में। फिर दूसरी कंडीशन आती है, इफ़ यू फोकस ऑन योर डायग्राम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो डायग्राम था उसके ऊपर हम लोग है ना ऊपर से कोक छिड़क रहे थे ना, कोक डाल रहे थे। कोक का क्या इंपॉर्टेंस है कि वाई वी आर पुटिंग द कोक। लेट्स फोकस ऑन द डायग्राम फर्स्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ हमने कोक डाला रखा है। अब ये कोक की खासियत क्या होती है, एक्चुअली ये जो ग्रेफाइट्स जो होते हैं ना, ये एनोड होते हैं ना, ये लोग, ये तुम्हें मालूम है ना, ये रिप्लेस होता जाता है। ठीक है, ये डिक्रीज़ होती जाती है और रिप्लेस होती जाती है, तो बेसिकली क्या हो जाए कि जो हीट अंदर एक तुम्हें मेंटेन करनी है हीट, वो हीट लॉस ना हो जाए, क्योंकि देखो वैसे एक्चुअल में 2050 चाहिए, लेकिन तुमने ना इसका ऑलरेडी टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया, 950 तक कर दिया 2050 के बदले। तो ये जो कोक डालते हैं, ये जो हीट लॉस बाय रेडिएशन ना हो उसको प्रिवेंट करते हैं। ये ना हो जो अंदर तुमने 950 टेम्परेचर मेंटेन करा ऊपर से खुला हो तो वो निकल जाए, तो इट बेसिकली प्रिवेंट्स द हीट लॉस बाय रेडिएशन। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स आपकी होती हैं है ना, ये इनमें जो कार्बन इलेक्ट्रोड्स आपकी हैं इनमें आग ना लग जाए, है ना, इसमें इट डज नॉट कैच फायर। सो ऑल दिस थिंग ऑल्सो इज़ बीन प्रिवेंटेड बाय दिस थिंग। इसीलिए बेसिकली जो ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड्स होती हैं इसको हमें ना तभी स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि ये याद रखना, जब ये बनाओ डायग्राम तो ये इलेक्ट्रोलाइट से टच हो रहा हो, है ना, उसमें डूबा हुआ हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वजह थी, क्योंकि जो ऊपर कोक हम डालते हैं ये तो हीट को बाहर निकलने नहीं देता है, उसको रोकता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं इनमें फिर आग नहीं लगती है ना, ये बर्न नहीं होते, जलते नहीं हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग मोफाइट पार्ट, दैट इज़ योर दिस थिंग, कि अभी हमने कुछ और भी इसमें चीज़ें देखनी है कि जो एनोड्स जो हमने ये यूज़ करी रखी ये रिप्लेसेबल होती है, आप इसको रिप्लेस करते रहते हैं, ऐसा क्यों, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसको समझने के लिए हमें रिएक्शन समझना पड़ेगा। नाउ लेट्स फोकस ऑन द रिएक्शन पार्ट फर्स्ट। जैसे ये आपका है क्रायोलाइट है, ठीक है, क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6), ठीक है। ये अब रिस्पेक्टिव अपने आयंस में जाएगा, पहले आप कर लीजिए, बाद में हम बैलेंस करेंगे। Al+3 प्लस F-, ठीक है। फॉर बैलेंसिंग इट हाउ मैनी F आर देयर, 6 आर देयर, सो पुट 6 ओवर है। Na कितना है, 3 है। Al कितना है, 1 है, तो ये इतना है, ठीक है। अब फ्लोरोस्पार पे आओ, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट में थी ना, फ्लोरोस्पार्स वगैरह, तो फ्लोरोस्पार का फॉर्मूला क्या होता है, CaF2। इसको भी आप बैलेंस करिए, Ca+2 प्लस F- और ये 2 लगा दीजिए। अब नेक्स्ट कंडीशन है योर एल्यूमिना, ठीक है। ये क्या था, Al2O3। नाउ अगेन दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी गिव यू दीज आयंस, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यू पुट द बैलेंसिंग पार्ट, तो यू पुट 2 ओवर या पुट 3 ओवर या, ठीक है। ये आपका ये रिएक्शन हुई। अब आप देखिए आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं। अब होता है माइग्रेशन, कैथोड पे कौन माइग्रेट करेगा, कौन डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अब कैथोड इज़ नेगेटिव, नेगेटिव होने की वजह से देखो कौन कौन है, पॉजिटिव वाले कौन है, 1 2 3, ये 3 हैं, 1 2 3, यानी कौन कौन है, जाएंगे तीनों, Na+ भी जाएगा, Ca+2 भी जाएगा इसके पास, और Al+3 भी जाएगा। लेकिन कैथोड पे पहुंचेगा कौन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कौन छोटा है, Al+3। सो कैथोड के पास बेसिकली कौन जाएगा, Al+3 विल गो। ये 3 इसमें लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको बाद में करेंगे हम। 3 इलेक्ट्रॉन्स हम देखेंगे, इसको समझेंगे पहले कि बेसिकली ऐड करना है 3 इलेक्ट्रॉन्स को, और ये Al देगा, लेकिन ये ऐसा रिएक्शन नहीं है,
ठीक है, क्यों नहीं है? ध्यान से देखो ऊपर एल्यूमिनियम के कितने हैं आयंस? 2 आयंस, 2 है ना, 2 लगा हुआ है। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग में ही, अगर मैं समझा रही हूँ 2, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 2Al+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 2Al। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एक्चुअल में होना चाहिए था, लेकिन ऊपर देखिए आपको कितने Al+3 मिले हैं? 2। तो इसीलिए आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। ये सब लिखिएगा नहीं, सिर्फ अपने समझने के लिए, क्योंकि बुक्स में डायरेक्ट ये स्टेप दिया रखा है, ये नहीं दिया रखा, लेकिन एक्चुअल में ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब है एनोड का पोर्शन। ठीक है, एनोड में, एनोड है पॉजिटिव, तो सारे नेगेटिव वाले जाएंगे। तो नेगेटिव में कौन कौन है? O था -2, F माइनस था। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो एनाइंस के में ये नीचे आएगा तो ये माइग्रेट करेगा। तो बेसिकली कौन माइग्रेट करेगा? ऑक्सीजन इसके पास जाएगा, तो O-2 है, तो ये उतने इलेक्ट्रॉन्स आपका निकालेगा। ठीक है, अब इसको भी बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये O देगा। ठीक है, ऑक्सीजन की कंडीशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तुमने याद हो जब मैंने वो करा था ये Al2O3 में, तो इसमें कितने ऑक्सीजन आपको मिलते? 3। तो यानी बेसिकली ये भी जो पोर्शन है ये आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये लिखना नहीं, आप डायरेक्ट ये लिखोगे 3O-2 -3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 3 नेसेंट ऑक्सीजन। पर दिस इज़ नॉट द कंडीशन। एक्चुअल में नेसेंट ऑक्सीजन तो रहेगा नहीं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा O2 गैस में। अब ये इवन तो रहेगा नहीं कि आप इसमें है ना कुछ कर दीजिए कि 5.2 या कुछ इस तरह से कर दीजिए कि डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये ना 3 आपको मिल जाए। 1.5 आपने लगा दिया तो 3 मिल गया ऑक्सीजन ना। इसको आप इवन नंबर्स में लेंगे और नंबर्स में नहीं, तो आप पुट 3 ओवर हियर। ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन एटम्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि 3 नेसेंट ऑक्सीजन है तो 3 दूसरे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करेंगे और वो 3 ऑक्सीजन गैस आपको देंगे। तो बेसिकली आपके पास अब आपको पता चल जाएगा कि कैथोड में आपके पास प्योर एल्यूमिनियम मेटल आएगा, एनोड पे यू विल गेट दिस थिंग ऑक्सीजन गैस। इसके अलावा भी है ना एनोड पे थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 भी रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि देखो बहुत जगह कोक वोक है ना, तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 भी है ना गैसेस है ना, और नेगेटिव गैसेस हैं, तो ये भी है ना एनोड पे आपको दिखती हैं थोड़ी, लेकिन मेन प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन गैस है। सो आई थिंक दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू एंड वी हैव डिस्कस दिस थिंग। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना भूल गई थी, ये जो पूरा जो प्रोसेस तुमने पढ़ा है जो सेकेंड स्टेप का, इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है और इस प्रोसेस का जो नाम है वो है हॉल्स हेरोल्ड्स प्रोसेस। ठीक है बेटा, ये थोड़ा ध्यान देना। अब आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 क्वेश्चन। प्योरीफिकेशन ऑफ ओर अगर बात करोगे एल्यूमिनियम की, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, तो उसमें आप नाम लिखोगे बेयर्स प्रोसेस। लेकिन जब आप मेटालिक ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करोगे तो उस कंडीशन पे आप क्या नाम लिखोगे? हॉल्स हेरोल्ड्स प्रोसेस। So this is clear to you all. Now we have already discussed entire thing. I think nothing is being left over here. हम एक लास्ट टॉपिक है उसका रिफाइनिंग वाला, वो मैं आपको नेक्स्ट पोर्शन में बता दूंगी। और फर्दर आप उसको प्योरीफाई, बेसिकली यहाँ पे जो एल्यूमिनियम आपको मिलता है, जो मिला है आपको, वो करीबन 99.5% प्योर होता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको प्योरीफाई करना चाहें तो आप हूप्स की प्रोसेस से उससे प्योरीफाई कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल एंड प्लीज़ फोकस ऑन द डायग्राम्स ऑल्सो। इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होता है, और लेबलिंग करने को आ जाए या कुछ भी आ जाए तो उसको प्लीज़ फोकस ऑन इट।